Hello everyone. So there are many doubts in students' mind regarding the reduced syllabus of science. So in this video we will see how these topics are reduced and which topics are included in by CBSE in our NCERT textbooks. First of all, take a look on our science textbook. It is divided into three parts: physics, chemistry, and biology. Means the book name is science, but it is all the chapters are divided into three main branches. They are physics, in which we will study about nature, natural phenomena, how does it takes place. Then in chemistry, we will study about different type of substances, matters, different chemicals and their reactions. In biology, we will study about life and life sciences, how this life takes place, how the process of life takes place. Now, if we will see our textbook, there are 16 chapters in our textbook. The first one is chemical reactions and equations. It is a chemistry part. Acids, bases and salts is a chemistry part. Metals and non-metals is again a chemistry part. Then carbon and its compounds is a chemistry part. And periodic classification of element is chemistry part. That means total of 5 chapters. Okay, the first 5 starting 5 chapters are of chemistry. Okay, then next sixth chapter is life processes. It is a biology part. Then control and coordination is again biology part. Then how do organisms reproduce is biology. Heredity and evolution is biology. Then the 10th, 11th, 12th, 13th and 14th, these chapters are of physics. And again the 15th chapter, that is our environment and management of natural resources, this is also a biology part. That means among our this 16 chapters, 7 chapters is of biology. सबसे ज़्यादा part आपका biology का होता है इस book में. 5 chapters chemistry के, 7 chapters biology के and physics अगर देखें हम तो 10th chapter से, that is light, reflection and diffraction, human eye and colorful world. It is also physics portion, electricity, magnetic effects of current and sources of energy. That means these 5 chapters includes our the main part, which is our physics part. Now, if we will see that the course structure which is designed by NCERT in class 10th is divided into main 5 units. The first unit मतलब इन्हीं chapters को unit wise रखा गया है, कुछ और कंफ्यूजन नहीं लेना है उसे, सिर्फ उनको यूनिट में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड है. सेकंड चैप्टर वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है ये 23 मार्क्स की होती है, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड ये बायोलॉजी से रिलेटेड है. देन नेचुरल फिनोमिना, इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, 12 मार्क्स का है. देन इफेक्ट्स ऑफ करंट रिलेटेड टू फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये चैप्टर, ये यूनिट. इट इज ऑफ 14 मार्क्स. देन नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज ऑफ 5 मार्क्स. तो टोटल हमारे ऐसे हो जाते हैं 80 मार्क्स और 20 मार्क्स इज ऑफ इंटरनल असेसमेंट. इसमें हमारे प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और हमारा पोर्टफोलियो आता है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. So like this the grand total becomes 100 marks. Now if we will see the first unit, in the first unit these all topics are included. ओके ये जो स्लाइड में दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, इसको कट ऑफ नहीं किया है. केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ये चैप्टर पढ़ना है हमें, जो कि हम पढ़ चुके हैं. देन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एज इट इज है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें बहुत सारा सिलेबस कट हुआ है. जो बहुत सारी चीज़ें पहले इंक्लूडेड थी, कोरोशन जो लास्ट पार्ट है, मतलब हमारे चैप्टर के जो लास्ट पार्ट, आई विल टेल यू कि कौन से टॉपिक रिमूव हुए. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं
फर्स्ट चैप्टर में कोई चेंज नहीं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में कोई चेंज नहीं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो चेंज है वो है कि उसमें लास्ट पार्ट के कुछ पोर्शन हटा दिए गए हैं। 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, दैट मीन्स 30% केमिस्ट्री से, 30% फिजिक्स से एंड 30% बायोलॉजी से प्रॉपर उसको रिड्यूस किया गया है। तो देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप अगर टेक्स्ट बुक में भी देखोगे आपको क्लियर ये टॉपिक्स लिखे होते हैं, सब हेडिंग्स दी हुई होती है। सो मार्क दिस, यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक्स इन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। देन कार्बन कंपाउंड जो है इसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा। इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड को इंक्लूड किया है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इंक्लूड किया है, होमोलॉगस सीरीज को इंक्लूड किया है, जबकि जो नॉमेनक्लेचर वगैरह है बहुत सारा इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर वगैरह था, ये सब को रिड्यूस किया है। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है, अर्ली अटेम्प्ट्स एट, मतलब ये चैप्टर्स में से केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट कंपाउंड्स में चेंज हुआ है। अब क्या चेंज हुआ है वो हम देखते हैं। देखो अगर हम देखें कि कौन से टॉपिक इस यूनिट से रिमूव हुए हैं, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस बहुत सारी होती थी, वो सब के सब रिमूव हो गई है। कोरोशन एंड इट्स प्रिवेंशन भी रिमूव किया है, मतलब ये मेन दो टॉपिक्स हैं, इनको रिमूव किया है, कट ऑफ कर दिया गया है। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से नॉमेनक्लेचर, देखो बहुत बड़ा है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इससे काफी कुछ रिमूव हुआ है, बहुत सारा पार्ट आपका इसी में से रिमूव हुआ है केमिस्ट्री के। मतलब लगभग ये कट ऑफ ही हो गया है चैप्टर, सिर्फ उसका थोड़ा सा पोर्शन उसको इंक्लूड किया है। नॉमेनक्लेचर रिमूव किया गया है, फंक्शनल ग्रुप्स हटा दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेट यू शुड टेक इन योर टेक्स्ट बुक, ये पेंसिल से मार्क कर लो कि ये पोर्शन जो है ये क्या हो गए हैं, ये रिमूव हो गए। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड्स की प्रॉपर्टीज, सोप्स और डिटर्जेंट्स, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ये सबको रिमूव किया है। देन अगर हम देखें सेकेंड यूनिट, दैट इज बायोलॉजी की यूनिट, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसमें लाइफ प्रोसेसेस जो है उसको बिल्कुल टच नहीं किया है, जैसा था ये एज इट इज रखा है। ओके, फर्स्ट चैप्टर है इसीलिए स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा, इसलिए इसको रिमूव नहीं किया गया है। देन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं किया है, एज इट इज रखा है। जबकि जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अगर आप देखें तो यहाँ पर उसको सिर्फ हेरिडिटी नेम दिया है, दैट मीन्स इवोल्यूशन टॉपिक उसमें से रिमूव किया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी इज एज इट इज, उसमें हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब उसमें इंक्लूड किए हैं, जबकि इवोल्यूशन टॉपिक जो है उसको रिमूव किया है। ओके तो लाइफ प्रोसेस एज इट इज है, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक एज इट इज है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी इज सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं है, जबकि एंड इवोल्यूशन वाला जो इवोल्यूशन टॉपिक है उसको रिमूव किया गया है। देखिए कौन कौन सी टॉपिक्स बायोलॉजी में रिमूव हुए हैं। एक टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत टफ टॉपिक था ये, इसमें पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में था, हार्मोन्स के बारे में था, कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं, कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, कौन से हार्मोन्स बनते हैं। द होल चैप्टर इज आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, फॉर दिस ईयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को रिमूव कर दिया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन को हटाया है। Okay, heredity is included and evolution topic is removed. Then in the third unit if we will go, 5 units है हमारी बुक की। थर्ड यूनिट अगर हम देखें, नेचुरल फिनोमिना फिजिक्स का यूनिट है ये, इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कर्व्ड सरफेसेस, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब को रखा गया है। ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके लॉस, उसके फिनोमिना, पावर ऑफ लेंस, ये सब, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, मतलब जो नेचर में नेचुरल फिनोमिना होते हैं, दीज ऑल आर देयर, बट द टॉपिक्स विच आर रिमूव्ड
from this is the one chapter, the human eye and the colorful world. Okay, इसमें से human eye totally remove कर दिया गया है, द फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, जबकि कलरफुल वर्ल्ड में जो कुछ फिनोमेना है उनको इंक्लूड किया गया है। उनमें से रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको इंक्लूड किया है। जबकि ह्यूमन आई जो कि बहुत टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें कि कौन कौन से डिफेक्ट्स ऑफ विजन में कौन सा लेंस लगता है, कौन सा दूर से नहीं दिखता है तो कौन सी डिसीज होती है, पास से नहीं दिखता है कौन सी डिसीज होती है, कहाँ पर कौन सा लेंस रखेंगे, कितना फोकल लेंथ आएगा, एवरीथिंग द न्यूमेरिकल्स जो टफ पार्ट था उसको रिमूव कर दिया गया है। और कलरफुल वर्ल्ड जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड है। ओके, उसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इंक्लूडेड है। देन स्टार्स के जो नेचुरल फिनोमिना है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं वो इंक्लूडेड है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ये इंक्लूडेड है, इसको रिमूव नहीं किया है। दैट मीन्स ह्यूमन आई इज रिमूव्ड एंड द few portion of colorful world is included. Then if we will see how things work, इसका जो थीम है ये हमारी 4th यूनिट है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है ये चैप्टर। आपको पूरा पढ़ना है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, एवरीथिंग इज देयर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कुछ पोर्शन रिमूव किया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो पीछे पीछे के टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी, एसी करंट, कुछ ये चीजें, और वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इन टॉपिक्स को रिमूव किया है, बाकी सब टॉपिक्स एज इट इज है। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब यूनिट 4 में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें कोई चेंज नहीं है। जबकि जो सेकंड चैप्टर इसी इफेक्ट ऑफ करंट का है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें जो एक मेन क्वेश्चन बनता था कि हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क या इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क, 5 मार्क क्वेश्चन था और बहुत टफ होता था, किसी स्टूडेंट को बहुत काफी स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता था, वो टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी करंट, एसी करंट, frequency of AC, advantage of AC and over DC, domestic electric circuits, these all topics are removed. Okay, then if we will see unit 5, that is natural resources, इसमें हमारे 3 topics होते हैं, sources of energy, environment, management of natural resources। इसने sources of energy को cut off किया है। ओके, इसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी के काफी सारे पोर्शन को कट ऑफ किया गया है, जबकि एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो बायोलॉजी के टॉपिक्स है उनको एज इट इज रखा है। फिजिक्स का ये पोर्शन जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब तीनों बुक में जो तीनों एक एक केमिस्ट्री का टॉपिक, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 90% रिमूव हो गया है। देन बायोलॉजी का पोर्शन रिमूव हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फिजिक्स से रिमूव हुआ है, बाकी कुछ कुछ पोर्शन दूसरे चैप्टर से रिमूव है। ऐसे करके हमारे टोटल 4 to 5 चैप्टर्स जो है वो कम हुए हैं। देन सोर्सेस ऑफ एनर्जी को देखो टोटली रिमूव कर दिया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज रिमूव्ड। और अगर इसको हमें डिटेल में देखना है क्लियर कट, मैंने बताया था सीबीएसई की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसमें जो रिड्यूस टॉपिक्स है, आप मेन सब्जेक्ट में जाइए, उस मेन सब्जेक्ट में साइंस ओपन करेंगे तो उसमें आएगा रिड्यूस टॉपिक्स, you can go through it for confirmation. So these are the topics which are removed and included in our textbook.